Hello students, welcome back to Rotary Academy. So students, here we study about rational and irrational number. Look at here. Here we study about rational and irrational number. Okay, irrational number. Look at here. Here we study about rational and irrational number. Firstly, you have to know about what is rational number. Look at here. You have to know what is rational number. Rational number, look at here. Firstly, how can we define a rational number? Look at here. Rational number. Any number which is written in the form of what? P by Q, okay, and Q not equals 0, and P comma Q belongs to what? Integer. This type of number is known as your rational number, okay, and that number which is not rational, then that number will be your irrational number. Look at here. For example, आप देखो, अगर हम आपसे कहें 2/5, which type of number is this? Yes, 2 and 3 belongs to integer, and 5 not equal 0, that's why it is a rational number, okay. For example, 3/-8, yes, it is also a rational number. Look at here. It means any number which is written in the form of P/Q and Q not equal 0 and P or Q belongs to integer, that is a rational number. अगर जो आपसे ये कहा जाए what is irrational number, it means those number which are not rational is irrational number. For example, यदि हम आपसे बाबू ये कह दें √2, which type of number is this? Look at here. √2, which type of number is this? Look at here. Firstly, you have to know about this. √2 can be written as √2/1, okay, and here comparing by P/Q, okay, then we get P equals √2 and Q equals what? Look at here it satisfies the condition that Q not equal 0 and Q also belongs to integer, yes, but here P equal √2. Look at here P equal √2, but √2 does not belongs to integer. समझ में आ रहा है ना? √2 जब इंटीजर में नहीं हुआ, इसका मतलब दिस इज योर नॉट अ रेशनल नंबर. इफ दिस इज नॉट अ रेशनल, इट मीन्स दिस इज इर्रेशनल नंबर. व्हाट? दिस इज इर्रेशनल नंबर. लुक एट हियर सम रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर. यू हैव टू नो अबाउट व्हाट टाइप the representation of rational and irrational number. How can you represent it? Or notation. Look at here. अगर जो आपको rational number बोला जाए, look at here. Rational number. Look at here. Rational number को हम denote करते हैं किससे? Q से, okay. And irrational number. Look at here. Irrational number. Irrational number can be denoted as Q कॉम्प्लीमेंट. कैसे पढ़ते हैं बाबू? इसको पढ़ते हैं Q कॉम्प्लीमेंट, ओके. Q कॉम्प्लीमेंट. इट मीन्स दोज नंबर विच आर नॉट रेशनल, दैट इज इर्रेशनल नंबर. दैट्स इट. फॉर एग्जांपल लुक एट हियर. यू कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम एज, लुक एट हियर रेशनल नंबर. लुक एट हियर रेशनल नंबर. वी क्लासिफाई दिस रेशनल नंबर एज फॉलोज. Look at here. This is rational number 0.25. Yes, it can be written as P/Q. Look at here. This can also be written as 3/4. Yes, it is a rational number. समझ में आ रहा नहीं? जितने भी नंबर से सारे ये इसमें जो भी लिखे सारे रेशनल. And look at here. This is your irrational number. Look at here. Irrational का मतलब देखो हमने आपसे क्या कहा था अभी, जैसे √5. Look at here. √5 is your irrational number. √2 irrational number. एंड सो ऑन. सपोज किसी हम किसी मल्टीप्लाई भी कर देना किससे नॉन जीरो रेशनल नंबर, देन इट ऑलवेज बी अ इर्रेशनल नंबर. अब लुक एट हियर. आप देखो जब पढ़े होगे
क्या रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर व्हेन कंबाइंड टुगेदर देन दे फॉर्म रियल नंबर। लुक एट हियर, आप नंबर सिस्टम पे ये जानते हो, जैसे ये भाव आपका नंबर सिस्टम है, यहाँ 0 1 2 3 एंड सो ऑन। लुक एट हियर आल्सो -1 -2 एंड सो ऑन। लुक एट हियर, ये सारे आपके नंबर सिस्टम है, लेकिन लुक एट हियर between 1 and 2 there are infinite number. For example 1.01, 1.02, 1.03. Look at here 2.5, a lot of number presented. There are, in other words you can say, between 1 and 2 infinite number present. That's why from minus infinity to infinity, this here all rational number in this number line and also all irrational number. If we combine these number rational and irrational, then we get a real line formation. For जैसे फॉर एग्जाम्पल r मतलब ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल लाइन r इक्वल, लुक एट हियर, आई अर्लियर टोल्ड दैट रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज q. ओके, q यूनियन, लुक एट हियर, यस, यहाँ देखो आप, वेट, यस, हमने अभी आपको बताया रेशनल कैसे डिनोट करते हैं। लुक एट हियर, ये हटा, यस, रेशनल, ये रियल नंबर इक्वल टू क्या, q यूनियन q कॉम्प्लीमेंट। इट मीन्स अगर जब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को कंबाइन करके लिख देना तो आप पूरे रियल लाइन का फॉर्मेशन कर देते हो। ये आपके पूरे रियल लाइन समझ में आता है, यही आपका रियल नंबर। लुक एट हियर, रियल नंबर का मतलब ये हो ना, इसमें सारे रेशनल भी नंबर आ गए और सारे इरेशनल नंबर आ गए। समझ में आ रहा है ना, तो ये आपका रियल नंबर होगा। ठीक है, चलो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, VVI। ओके, देखो इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं थोड़ा सा भी हम आपको डिस्कस करते हैं। वेट, यस, वेट, यस, so here you see that rational and irrational number. Okay, तो आप देखो, हाँ, look at here, rational number and irrational number we classify here in this way. Look at here, a very most diagram for which you can understand rational number. देखो a lot of example here. Here all is rational number. Look at here, so whole number, natural number you know very well. And irrational number, look at here, √2 is a irrational, pi is a irrational, √3 is a irrational. Why it is irrational? Because it cannot be written in the form of what, p upon q, and q not equal 0 or p and q belongs to integer. Look at here, if you want to see that is it √2 is a rational or irrational, √2 upon 1 can be written as ये √2 upon 1। अब देखो p की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, p इक्वल आपका हो जाएगा √2, बट √2 नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, दैट्स व्हाई इट इज अ इरेशनल नंबर। समझ में आ रहा है ना? ओके, तो फिर देखो आप कैसे मतलब आप रेशनल और इरेशनल को क्लासिफाई कर सकते हो। हाँ, ये भी ध्यान देना, अ वेरी मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस रेशनल एंड इरेशनल नंबर। लुक एट हियर, फॉर एग्जांपल देखो, अगर जो आपसे कहीं भी कह दिया ना डेसिमल एक्सपेंशन, लुक एट हियर, डेसिमल एक्सपेंशन में अगर जो नॉन रेकरिंग, लुक एट हियर, नॉन रेकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, अगर कोई नंबर है, ध्यान देना, तो ना तो रेकर करे और ना ही टर्मिनेट करे, देन such type of number is known as what, irrational number. For example 2.101001000000140 एंड सो ऑन। देखो ये इसमें देख क्या रिपीट, देखो इसमें देख क्या कोई नंबर रिपीट कर रहा है क्या, बिल्कुल नहीं कर रहा। 10 या 100 या 1000 रिपीट भी नहीं कर रहा और खत्म भी नहीं हो रहा। ध्यान देना, ये डॉट डॉट है, इट मीन दिस टाइप ऑफ नंबर इज योर इरेशनल नंबर। समझ में? अगर डेसिमल एक्सपेंशन क्या, जो जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नाइदर रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग आर नोन एज इरेशनल नंबर। ओके, और रेशनल नंबर में क्या, अगर भी कहीं भी आपसे खुद सोचो जहां दोनों में बोल दिया जाए ना नॉन रेकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, इसका मतलब सोचो कि ये पक्का इरेशनल नंबर ही होगा। अगर किसी भी एक बोले ये रेकर करता है लेकिन नहीं टर्मिनेट करता, नॉन टर्मिनेटिंग, ओके, पक्का है कि ये रेशनल होगा। लेकिन अगर कोई कहे कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, तब भी रेशनल होगा। अगर जो दोनों में नॉन लग जाए
मतलब क्या, दोनों में अगर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग आर नंबर्स आर सच टाइप ऑफ नंबर आर नोन एज इररेशनल। फॉर एग्जांपल अगर आप √2 की वैल्यू लिखना चाहो बाबू तो 1.414 अब तो ऐसे आएगा, लेकिन देखना ये कोई नंबर रिपीट नहीं होंगे। पाई की भी वैल्यू होती है देखना 3.14 ऐसे डॉट डॉट, फिर ये भी नहीं रिपीट होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज इररेशनल नंबर। समझ में आ रहा है ना? ओके चलो फिर आप देखो, यस we just start your exercise. Okay, we just want to start your from exercise. Okay, देखो हमने रेशनल और इरेशनल नंबर्स के कुछ बेसिक्स हमने आपको बता दिया। ओके, सो वी जस्ट कम टू एक्सरसाइज। ओके, एंड सम प्रॉब्लम्स। लुक एट, yes this is your chapter and this is your chapter number first. So here we discuss about irrational and rational number. Okay, look at here, type of decimal number। देखो हमने आपको यही बताया। Look at here, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? उसको टर्मिनेट मतलब क्या, डेसिमल एक्सपेंशन भी करो ना। Look at here, this can be written as this form 5/2 मतलब 2, ये देखो टर्मिनेट हो गया ना, that's why it is रेशनल। देखो ये सारे रेशनल नंबर समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि देखो ये हमने बस इरेशनल आपको बताया था, नाइदर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन क्या रेकरिंग आर नोन एज इरेशनल नंबर। समझ में आ रहा है? ये देखो ये कह रहा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, देखो कभी खत्म नहीं हो रहा है। लेकिन ये बताओ अगर जब ये बताओ 1.166 डॉट डॉट, दिस कैन बी आल्सो बी रिटन एज 7/6 ना। 7/6 व्हाट टाइप ऑफ नंबर? इट इज रेशनल, दैट्स व्हाई इट इज अ रेशनल नंबर। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो फिर आप देखो बाबू, यस ओके, तो ये आप चीजें समझ सकते हो। हाँ ठीक है, अब देखो लुक एट हियर, यस अ वेरी मोस्ट एग्जांपल, देयर आल्सो एग्जिस्ट नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसी को हम बोलते हैं क्या? इरेशनल नंबर। ओके, लुक एट हियर, यस देखो ये कह रहा है बाबू ना, देखो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। देखो ये कह रहा है राइट एज ए फ्रैक्शन इन लोवेस्ट टर्म। देखो ये आपका एग्जांपल फर्स्ट, ये कह रहा है इसको लोवेस्ट टर्म में ब्रेक करो। यस, दिस कैन बी रिटन एज 0.075 कैन बी रिटन एज 75 in place of decimal what you can write 1, how many digit? 3, that means 3 digit। इसको कैंसिल आउट करो किससे? 25 से, 25 3 जा 75 और 25 4 और 0, ये यानी ये इसका डेसिमल। देखो ये फ्रैक्शन फॉर्म में लोएस्ट टर्म में आ गया। देखो ये यही था ना, यानी आप सारे इसको कर सकते हो, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू डेसिमल। कुछ नहीं बाबू, इसका इसमें बस डिवीजन कर दो, खत्म। समझ में आ रहा है ना? ओके सो हियर वी कैन सी दैट ऑल द डेसिमल एक्सपेंस, बस कुछ नहीं है बाबू, आपको इसमें बस डिवाइड करने हैं और कुछ नहीं करना। ओके यस, लुक एट हियर, एक्सप्रेस एग्जांपल नंबर 3, यू कैन सी example express these to correct 4 decimal places. It means you have to only to divide 7 to किसमें 22 में। ओके, then we get 3 times 1 decimal 0 1 4 एंड अप टू ये कितने प्लेस तक बोला? अप टू डेसिमल का 4 प्लेस। आप डिवाइड कर दो डेसिमल का 4 प्लेस तक, इसको राउंड अप करके आंसर लिख दो। ओके चलो आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। ओके, हाँ ध्यान देना, इनको यदि अरेंज असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, नो डाउट अबाउट इट। आप इनको अर्लियर क्लासेस में आप इसको पढ़े हो, हाउ कैन टू असेंडिंग अरेंज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके चलो, yes, without actual division find which of the following fraction are decimal at terminating decimal. Yes, you can solve it easily. Okay, चलो हम कुछ क्वेश्चंस और आपसे करा दें। यस, a very important here, look at here, express the following recurring decimal as a क्या वल्गर फ्रैक्शन। लुक एट, इसको यदि आपको वल्गर फ्रैक्शन का फॉर्म लिखना है ना बाबू, तो कुछ नहीं करना। देखो इसको हम ले लेते हैं x, जो गिवन है ना उसको आप x ले लो। 1.6 पे क्या, जैसे बार है ना, इसको डॉट भी बोलते हैं, बार भी बोल सकते हैं। दिस कैन बी रिटन एज
1.6666 अप टू ऐसे सो ऑन। समझ में आ रहा है? अब देखो कुछ ना इसमें ना बोथ साइड के आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से जब मल्टीप्लाई करोगे ये क्या आ जाएगा 10x इक्वल टू क्या, ये आ जाएगा 16.6666। ओके, ये इक्वेशन 1 ले लो, ये इक्वेशन 2 ले लो, कुछ ना इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये लिखोगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन व्हाट 2। ओके, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, so you get here that what 10x minus x equal to what 16 में से 1.6 आएगा तो आपका बचेगा बाबू क्या, इसको जब भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना ये सारे इधर तो जीरो आ जाएंगे और ये आपका हो जाएगा व्हाट 15। ओके, ये आपका आ जाएगा 9x equal to 15, इट मीन्स x equal to what 15/9, 15/9 can be written as 15/9 can be written as 5/3। तो ये आपका इसी जो ये आंसर है, समझ में आ रहा है ना, तो इसको आप ऐसे कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये सारे आप क्वेश्चंस ऐसे ऐसे कर सकते हो। ओके, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। यस, ठीक है, आप देखो 110 से मल्टीप्लाई आप करके कर सकते हैं। देखो एक्सरसाइज फर्स्ट, लुक एट ये कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर टू फ्रैक्शन, सो सिंपल। लुक एट हियर, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन इज गिवन, दिस कैन बी रिटन एज 6 to 5 upon in place of decimal you can take 1 and how many digits 3, that's why here 1 2 and 3। आप इसको सिंपलीफाई कर लो, जो भी देखो 25 से ले जाते हैं 25 टाइम में 25 से जाएगा 40, फिर ये 25 से कट, ये देखो 5 से ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 8, यानी दिस कैन बी रिटन एज 5/8। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, समझ पा रहे हैं ना, यानी ऐसे सारे आप कर सकते हैं, इनको फ्रैक्शन का डेसिमल बता दे, बस डिवाइड करते जाओ। ओके, चलो तो आप देखो और क्या है इसमें। यस, एक्सप्रेस एज ए डेसिमल नंबर करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेस, यस यू कैन सॉल्व इट। ठीक है, आप इसको कर सकते हो। देखो एक्सप्रेस द रेकरिंग डेसिमल एज वेल कर, देखो अभी हमने बताया ना आपको ये, लुक एट, अभी हमने ये क्वेश्चन बताया था, आप इसको क्या करोगे x इक्वल टू क्या 0.4 पे बार, ठीक है, ये दिस कैन बी रिटन है 0.444 अप टू डॉट डॉट। ओके, हमने ही बताया ना, फिर 10 से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 10x इक्वल टू 4.444। ओके, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, डिवाइड कर दो, उसके बाद क्या आ जाएगा 9x इक्वल टू क्या आ जाएगा, जो भी इसमें डिवाइड जो आएगा इसमें x से डिवाइड कर दो, देन यू गेट योर आंसर। समझ में आया ना, तो ये सारे आपको इरेशनल नंबर हमने चलो बता दिया। अब देखो आता है, देखो रेशनल, देखो वही हमने आपको बताया था, अभी डिफिनेशन ही हमने बताया था ना। लुक एट हियर, रेशनल नंबर एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन हमने पी ओ क्यू बताया था, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये हमने बताया था, देखो रेशनल में हमने नोटेशन ही बताया था। लुक एट हियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। ओके, लुक एट हियर, यस, एवरी इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ m/n। देखो जो हमने क्या कहते, जो हर एक इंटीजर को m/n के फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यदि 5 को हम कहें तो आप 5/1 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, वही ये कह रहा है, देखो यही है ना, -3, देखो ये लिख सकते हैं, यस नो डाउट अबाउट इट, ठीक है ना। तो ये आप रेशनल और इरेशनल नंबर समझ रहे हो। चलो तो फिर आते हैं हम, यस, 10 एवरी रेशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। देखो हमने यही आपसे बताया था ना, लुक एट हियर, एवरी रेशनल कैन बी रिटन p/q वेयर p की बिलोंग्स टू इंटीजर, q की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 से ग्रेटर एंड p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। ठीक है, इस टाइप को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। चलो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर यू। लुक एट हियर, अगर सपोज करो आपको a और b दो गिवन क्या रेशनल नंबर हैं, तो इनका जो सम होता है ना वो भी रेशनल नंबर होता है। a और b दो आपके रेशनल नंबर है, इनका जो डिफरेंस होता है ना वो भी रेशनल होता है। फॉर एग्जांपल आपने 2 एक रेशनल लिया, 2 बिलोंग्स टू q, आल्सो 3 बिलोंग्स टू q, then here 2 minus 3 equals 1 and 2 minus 3 equals 1 also belongs to q. That's why what you get here from sum of two rational number is also a rational number, sum of two rational number is also a rational, difference of two rational number is also rational, multiplication of two rational number is also rational number। ओके, लेकिन लुक एट ये डिवीजन ना कोई जितने के नहीं होता, लेकिन एक अगर जो b a और b आपके दो रेशनल नंबर हैं तो a/b हमेशा रेशनल होगा। कब? जब जो डिनोमिनेटर है ना वो 0 नहीं होनी चाहिए, वही यहाँ आपको स्ट्रिक्टली मना किया हुआ। ठीक है, तो आप ये प्रॉपर्टी आप इनको याद रखोगे, दैट्स व्हाई यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम फ्रॉम योर एक्सरसाइज इजीली।
अब देखो आपसे एग्जाम में ये कहा जाता है ना, अगर जो दो रेशनल नंबर है इनके बीच आप रेशनल नंबर इंसर्ट करो। सपोज करो हम आपसे ये कह दें कि अगर मान लो आपके पास, मान लो सपोज करो क्या, लुक एट हियर, सपोज करो हम आपसे ये कह दें कि दो, जैसे मान लो लुक एट हियर, यस, या सपोज करो हम आपसे ये कह दें फाइंड, लुक एट हियर, फाइंड थ्री, यस, फाइंड थ्री रेशनल नंबर, लुक एट हियर, यस। तो देखो अगर सपोज करो आपसे हम ये कह देना, अगर जो फाइंड 2 या 3 रेशनल नंबर बिटवीन, मान लो दो आपसे नंबर कह दे, ठीक है, मान लो दो नंबर है उनके बीच में आपसे कह दे, मतलब कितना भी आपसे नंबर पूछा जा सकता है, उनके बीच दो नंबर आप बताओ, 3 रेशनल नंबर बताओ, 4 रेशनल नंबर बताओ, जो भी जितने टाइम्स पूछा जाए इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये देखो अगर सपोज करो बाबू, सपोज करो अगर जो आपसे ये कहा जाए फाइंड, लुक एट हियर, यस, फाइंड 3, यस, जैसे ये देखो फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन क्या, बिटवीन जैसे मान लो 2 and 5, सपोज हम आपसे ये कहें, तो देखो इनको सॉल्व करने का ना एक बहुत सा ट्रिक है। इनको आप कैसे, अगर सपोज करो, देखो एक मेथड हम बता रहे हैं, अगर दो आपको नंबर गिवन है, ठीक है, जैसे अभी ये हम मान लो बाबू हमने आपको क्वेश्चन दिया, फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे ये कह रहे हैं इफ, देखो ये कंडीशन क्या होता है, अगर इफ, लुक एट हियर, इफ y इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन x, ओके, और y की वैल्यू x से बड़ी है, देन between x and y n rational number is what, is given by कैसे, ध्यान देना, इसको आप लिख सकते हो, देखो ये फॉर्मूला होता है d इक्वल, आप लिख सकते हो y माइनस एक्स अपन कितने, आपको कितने नंबर रेशनल नंबर चाहिए, n चाहिए ना, तो यानी n प्लस 1, इसमें बस एक्स्ट्रा एक ऐड, ये आपका ये फार्मूला होता है, और इनके बीच के सारे रेशनल होते हैं, पहला होता है x प्लस डी, दूसरा होता है x प्लस 2d, तीसरा होता है x प्लस 3d, और लुक एट हियर कॉमा, यस, x प्लस 3d कॉमा डॉट डॉट, आपको कितने चाहिए, n चाहिए ना, यानी x प्लस n इंटू डी, ये आपके n क्या है, रेशनल नंबर हो गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन के यदि हम करें, सॉल्व करें, यस, लुक एट हियर, अगर इसी क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करें ना, तो आप देखो कैसे सॉल्व करोगे, लुक एट हियर, यस, आप देखो कैसे करोगे बाबू, वेट, अगर इसको आप सॉल्व करो ना, तो ये होगा आपका रेशनल फाइंड आउट करना, तो हमें क्या होता है d इक्वल टू कितना, y माइनस एक्स, यानी देखो ये पहला x होता है, ये y, ओके, ये ग्रेटर है इससे, तो ओके, ये हम कह देंगे क्या, y यानी 5, लुक एट हियर, 5 माइनस 2 अपॉन 1, कितने होंगे रेशनल नंबर, 3 ना, यानी 3 प्लस 1, हमने n प्लस 1, ये कितना आ जाएगा, 3 अपॉन 4, ओके, यानी ये आपकी देखो d की वैल्यू कितनी आई, 3 अपॉन 4, ओके, और देखो हमने आपको रेशनल नंबर क्या होता है, तो पहला रेशनल नंबर क्या होता है, x और y के बीच में, पहला x प्लस d, दूसरा x प्लस 2d, और तीसरा x प्लस 3d, इट मींस आपने x की वैल्यू अभी फाइंड आउट किया, x यही है, पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y, ओके, जो स्मॉलर होता है x होता है, तो पहला x प्लस d की वैल्यू आपने क्या लाया था, 3, लुक एट हियर, x की वैल्यू यहाँ 2 है, दैट्स ये 2 है, d की वैल्यू क्या है, 3/4, ओके, तो ये आपका फर्स्ट रेशनल नंबर हो गया क्या, बिटवीन 2 and 5, आफ्टर सॉल्विंग यू कैन गेट 4 to the 8 1 11/4, तो ये ध्यान देना 11/4 ये आपका फर्स्ट रेशनल नंबर हो, लेकिन ध्यान देना 11/4 इसके बीच लाई करना चाहिए, भी ध्यान देना, यस, 11/4 कैन बी रिटन एज 3 पॉइंट समथिंग, इट मींस 4 से थोड़ा सा कम, अब देखो 4 से 2 और 5 के बीच में 3 पॉइंट समथिंग आता है कि नहीं आता है, यस, बिल्कुल फिर सही है। और दूसरा आपका रेशनल लिखा है क्या, x प्लस 2d, लुक एट x प्लस 2 इंटू d की वैल्यू क्या आई है, 3/4, यानी x की वैल्यू क्या है आपका 2, अब प्लस ये कितना है 3/2, आल्सो दिस कैन बी रिटन एज 2 to the 4 यानी 7/2, 7/2 का मतलब 3.5, देखो ये 3.5 इसके बीच लाई किया कि नहीं किया, बिल्कुल। अब देखो थर्ड आपका हो जाएगा, x की वैल्यू क्या है 2 प्लस 3 इंटू d की वैल्यू क्या है 3/4, दिस कैन बी रिटन एज 2 प्लस 9/4, दिस कैन बी रिटन एज 4 to 8 यानी 17/4, 17/4 का मतलब 4 पॉइंट समथिंग, यस, लाइज बिटवीन 2 and 5, तो ये आपके सारे क्या हो गए, रेशनल नंबर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ये आपसे पूछा जाएगा क्या कि कोई आपके दो नंबर गिवन हो गए, इनके बीच क्या आपको रेशनल नंबर
फाइंड आउट करने हैं। तो ये आप रूल को होल्ड कर सकते हो, इससे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। देखो अभी हम आपको जैसे एक्सरसाइज में आपके हम प्रॉब्लम दिखा रहे हैं, अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स गिवन फ्रॉम योर एक्सरसाइज टू सॉल्व ऑल द रेशनल नंबर एंड हाउ कैन यू फाइंड। ओके लुक एट, हाँ ये भी ध्यान देना, बिटवीन टू नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट रेशनल एंड देयर आर इनफाइनाइट इररेशनल नंबर। समझ पा रहे हैं? देखो ये भी एक मेथड होता है। देखो क्या कर, इंसर्ट वन रेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। कुछ नहीं, अगर ऐसा कह रहा है ना ये, कुछ आप ये भी कर सकते हो, इसके बीच रेशनल निकालना है ना, इन दोनों को ऐड कर लो, दोनों को बाबू ऐड कर लो, अपॉन 2 कर दो। ये जो आप गेट करोगे ना, दैट इज योर रेशनल नंबर। समझ में आ रहा है ना? चलो तो फिर अब देखो इसमें यस इट मीन्स रेशनल नंबर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। आपसे ये कहा जाएगा कि दो नंबर गिवन है, ठीक है, उसमें आप ये कहेगा 3 रेशनल नंबर बताओ, 5 बिटवीन दिस एंड दिस नंबर, यू हैव टू फाइंड 5 रेशनल नंबर। देखो लुक एट हियर, यस आई एम जस्ट डिस्कसिंग अबाउट दिस टॉपिक। कह रहा है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। सो सिंपल क्वेश्चन, सो सिंपल। देखो जो हमने अभी मेथड बताया ना, उससे आप इजीली वे से कर सकते हो। d इक्वल टू क्या होता है, y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। ओके, इसको आप फॉलो करते हुए फर्स्ट रेशनल नंबर क्या आएगा, x प्लस डी, सेकेंड x प्लस 2d एंड सो ऑन। आपको आप कितने 5 चाहिए ना, लास्ट में क्या होगा x प्लस 5d। d की वैल्यू फाइंड आउट, तो पहले इसमें देखो विच वन इज लेसर एंड विच वन इज ग्रेटर, y माइनस एक्स को इससे डिवाइड करो, देन यू विल गेट योर आंसर। ओके चलो तो ये हुआ इसमें से। और देखो आपको हम बता दे रहे हैं टॉपिक और क्या है इसका। यस फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस इन सिमिलर वे यू कैन सॉल्व इट। ओके यस हाँ, रेशनल नंबर एंड सर्ट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कम्स टू हियर। ध्यान देना, अगर ये बात जो हमने आपसे क्या कराया था, ये रेशनल नंबर किस टाइप का, इरेशनल। देखो कह रहा है, अगर जो आपसे मान लो ये देखो, ये रेशनल इरेशनल का प्रूफ, इरेशनल नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे कहा जाएगा ना, इसको प्रूव करो कि इरेशनल नंबर है। ओके ये आप टॉपिक देख सकते हैं। जैसे ये देखो, हाँ लुक एट हियर, ये देखो इनका ये थोड़ी आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। लुक एट हियर यस, अगर हम आप ये कहें कि क्या रूट ए, इसका मतलब क्या होता है, a का पावर हाफ। समझ पा रहे हैं ना? ये अगर सपोज n रूट a का पावर n कैन बी रिटन एज व्हाट, a का पावर 1 अपॉन n। ओके अब होल पावर व्हाट, होल पावर n, इट मींस n कैंसिल आउट, इट मींस व्हाट रिमेन a। ओके हियर दैट्स व्हाई a इज रिमेनिंग। ये आपको सारी प्रॉपर्टी आनी चाहिए। यस द नंबर पाई इज इरेशनल नंबर। समझ पा रहे हैं ना? क्यों? क्योंकि इस अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज को हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके लेकिन पाई क्या होता है, इरेशनल। क्यों? क्योंकि इसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके चलो तो अब देखो सम फैक्ट अबाउट सर्ट्स ऑफ 2। जैसे देखो 2 का जो भी सर्ट, हाँ ये आप रूल को देखो आप फॉलो कर सकते हो। ऐसा ये कुछ रूल नहीं होता है कि आप इनको ऐसे कर सकते हो। मान लो आपसे कह दे √2 प्लस √2 प्लस दिस कैन नॉट बी रिटन एज √2 प्लस √3, ऐसा हम इनको नहीं लिख सकते। वही आपको यहाँ बताया, आप इनको देख सकते हो। ओके चलो a very most important question we want to just here discuss. Yes rationalization, a very very important topic for your exam। ठीक है, ये देखो रेशनलाइजेशन होता क्या है। रेशनलाइजेशन का मतलब ये हुआ, अगर आपको कोई नंबर सपोज ऐसे दिया हो, लुक एट हियर, ये सपोज आपको ये कह रहा है द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग अ सर्ट बाय अनदर सर्ट टू गेट ए रेशनल नंबर इज कॉल्ड अ रेशनलाइजेशन। मतलब ये हुआ ऐसा नंबर जिसमें किसी और सर्ट से मल्टीप्लाई करने यदि हमें रेशनल नंबर मिल जाए ना, इस टाइप ऑफ प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन। ईच सर्ट इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ द सर्ट। जैसे अगर सपोज इसको हमें सॉल्व करिए, आप देख रहे हो a प्लस बी a माइनस बी, इट मींस दिस बिकम्स फार्मूला एज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके दिस कैन बी रिटन एज 4 के स्क्वायर माइनस 16 एंड √3 के स्क्वायर मतलब 3। दिस कैन बी 13। यस 13 इज अ रेशनल नंबर। तो इसका रेशनलाइजेशन आपका ये सोचो, 4 प्लस √3 का रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या हुआ, 4 माइनस √3। क्यों? क्योंकि इसमें यदि हम इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें रेशनल में मिल जाए। अगर हम आपसे कहते बाबू कि 4 माइनस √3 का रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, आप कहोगे 4 प्लस √3। क्यों? क्योंकि इन दोनों के लिए हम प्रोडक्ट कर रहे हैं ना, तब भी हम रेशनल नंबर पा रहे हैं। ओके तो ये आपके रेशनलाइजेशन होगा। अब देखो इससे हम एक इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन कराना चाह रहे हैं। ओके प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। ओके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप कैसे, इसको जो कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव किया जाता है। ओके जैसे देखो इसको प्रूव किया, हम आपको समझा दे रहे हैं। क्योंकि ये सपोज दैट इसको p/q फॉर्म में ले लेंगे। ओके यहाँ q नॉट, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड। लुक एट हियर, अगर इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए क्या आ जाएगा,
ये आ जाए पी स्क्वायर इक्वल टू 3 ये क्यू स्क्वायर। ओके, अब देखो एस 3 डिवाइड क्या 3 जो 3 इसको डिवाइड करेगा ना, लुक एट हियर 3 क्यू स्क्वायर इट मींस क्या 3 डिवाइड पी स्क्वायर, और 3 पी को डिवाइड करता है। तो देखो अगर जो ऐसे आप सोचो कोई अगर जो नंबर है, लुक एट हियर, अगर जो मान लो लुक एट हियर अगर जो पी स्क्वायर अगर कोई प्राइम नंबर लुक एट हियर अगर ए स्क्वायर को कोई प्राइम नंबर डिवाइड करता है तो पक्का है कि ए को भी वो प्राइम नंबर, पी का मतलब क्या हुआ, पी हियर रिप्रेजेंट योर प्राइम नंबर, व्हाट प्राइम नंबर। ओके, अगर ए स्क्वायर को पी डिवाइड करते तो पक्का है कि इसको ए को भी पी डिवाइड करेगा। इन सिमिलर वही यहाँ लिखा है, देखो अगर 3 डिवाइड 3 क्यू स्क्वायर तो 3 डिवाइड पी स्क्वायर, समझ पा रहे हैं ना, ये देखो 3 डिवाइड पी, लुक एट ये लिखा है, इसका मतलब ये हुआ। इसको हम 3 पी इक्वल टू अगर यानी डिवाइड किया तो ये कुछ पी इक्वल टू 3 के फॉर्मेट का आएगा, इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे देन यू गेट यहाँ से जब आप सॉल्व करो 3 के स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर, अब फिर आप यहाँ से लिखाओगे, आपको बस यहाँ ना कंट्राडिक्शन दिखाने होते हैं। कंट्राडिक्शन का मतलब क्या समझ है, अगर सपोज तो आपको इरेशनल प्रूव करना है तो पहले हम उसे रेशनल ले लेंगे, समझ पा रहे हैं, उसके बाद से हम कुछ इसमें सब लॉजिक देंगे जैसे कि ये क्लियर हो जाए कि नहीं ये मेरा क्या रेशनल नहीं है। अगर जो रेशनल नहीं हुआ तो क्या बचा, हमने आपसे क्या बताया था पूरी, अगर जो जब जहां तक आप मतलब अभी तक पढ़े हो आपने दो ही टाइप का नंबर अभी तक पढ़ा होगा, आपने रेशनल और इरेशनल, और यही दोनों नंबर मिल करके पूरे रियल लाइन का फॉर्मेशन कर देते हैं। अगर जो रेशनल नंबर वो नहीं हुआ तो फिर नंबर किस टाइप का बचा, दैट मस्ट बी इरेशनल। ओके, तो पहले तो आपको दिखा देना है कंट्राडिक्शन से कि ये रेशनल नहीं हुआ। जब रेशनल नहीं हुआ तो इट इज ऑब्वियस दैट इट मस्ट बी इरेशनल, ये हमें प्रूव भी करना था। समझ में आया ना, ठीक है। इन सिमिलर वे यू कैन प्रूव दैट √6 इज एन आल्सो इरेशनल नंबर। इन सिमिलर वे सेम जैसे √2 √3 √6 √11 अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलो, और इसमें थोड़ा सा कुछ और आपको बता दे रहे हैं। यस, वेट यस, हाँ ये देखो अगर इसके बीच आपको इरेशनल नंबर रखना है ना, कह रहा है इंसर्ट 2 इरेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस, बस आपके बीच क्या 2 इरेशनल नंबर इसमें मतलब रखना है। ये बताओ अगर आप सिंपल √2 और √7 के बीच में इरेशनल नंबर डाल, आप कल सर ले लिए √3, यस बिल्कुल इट इज इरेशनल नंबर, √5 आल्सो इट इज इरेशनल, है कि नहीं, इसके बीच ही अप्लाई करता है ना, ये आपके सारे का यही तो बोला था ना आपसे क्वेश्चन, आप दे सकते हो। समझ में आ रहा है, हाँ लेकिन ध्यान देना जो भी इरेशनल नंबर आएंगे ना उनके बीच का ही होगा, ऐसा नहीं कि आउटसाइड ऑफ दैट नंबर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो इनमें क्या है, वेट यस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सपोज करो बाबू, अगर हम आपसे ये कहें कि इनका रेशनलाइजेशन करने के लिए लुक एट हियर, जैसे ये कहें हम आप इसको रेशनलाइज करो, लुक एट हियर 2/4 माइनस √3, इनको हम कह रहे हैं रेशनलाइज करो, क्या कह रहे हैं रेशनलाइज। रेशनलाइज करने का मतलब ये हुआ देखो इनके डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना। ओके, आप देखो क्या लिखोगे 2/4 माइनस √3। अब देखो क्या रेशनलाइजेशन में होता है, देखो ये जो साइन है ना, लुक एट ये मल्टीप्लिकेशन होता है, ये नंबर एज इट इज रहते हैं, देयर विल बी नो चेंजमेंट इन दैट नंबर बट द चेंजमेंट इन ओनली द साइन। Okay, that's why here if you rationalize this number then you get here 4 in place of minus, here we opposite sign। अगर सपोज कर यहाँ प्लस होगा तो पक्का है कि यहाँ क्या होगा नेगेटिव, यहाँ अगर नेगेटिव है तो पक्का है कि यहाँ कौन सा साइन होगा पॉजिटिव, सो हियर नेगेटिव, दैट्स व्हाई आफ्टर rationalizing here we get पॉजिटिव साइन। एंड देखो जिस नंबर से आप यहाँ करते हैं ना सेम नंबर डिनोमिनेटर भी होगा। ओके, एंड लुक एट हियर, आप इनमें कुछ ना न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लिकेशन कर दो और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। ओके, देन यू गेट 2 × 4 प्लस √3। ओके, लुक एट ये हियर a minus b into a plus b, is it clear or not? Look at here, you can see that this 4 minus √3 and 4 plus √3, it means this becomes an format as identity as a minus b into a plus b, it means a square minus b square। Okay, it means 4 का square means 16 you get and minus √3 का square means 3। after solving you can get 8 plus 2 √3। okay, and 8 plus 2 √3 upon 11, look at here, this can also be written as 8/11 plus 2/11 √3। यस, तो ये आपका ना देखो ये आपका रेशनलाइजेशन आ गया, यानी आप ऐसे ही रेशनलाइजेशन करोगे। अगर सपोज करो बाबू, सपोज करो इसी क्वेश्चन को हम आपसे ऐसे कह देते हैं, लुक एट हियर, यहाँ पे हम आपसे ये कहते हैं यही क्वेश्चन 4 minus √3 plus
मान लो 9/8 प्लस रूट 3, सब इसको हम क्या रेशनलाइज करें, कुछ नहीं, पहले देखो, पहले तो आप इसको सॉल्व करोगे, लुक एट हियर, इसको जैसे आपने सॉल्व किया ना सेम सेम, अब प्लस फिर इसको वैसे सॉल्व करो, उसमें इसमें भी क्या करते हैं, ये 8 प्लस रूट 3 इंटू 8 माइनस रूट 3 अपॉन 8 माइनस रूट 3, बस इसको सिंप्लीफाई करो, जो आया लास्ट में सबको ऐड कर दो एंड देन यू दैट विल बी योर आंसर। समझ में आ रहा है, ये कितने भी टर्म के हो सकते हैं। चलो तो फिर अब देखो इसमें और क्या कर सकते हैं आप, यस हाँ देखो यही जैसे हमने आपसे कहा यही था ना, लुक एट सिंप्लीफाई एग्जांपल 15, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करो, पहले इसको रेशनलाइज करो, देन इसका करो, देन इसका करो, ओके, सब जो भी आया ना सबको आपस में लास्ट में ऐड कर दो, देन योर दैट विल बी योर करेक्ट आंसर, ओके। जैसे देखो ऐसे ही किया है ना, बिल्कुल देखो जो ये किया है वैसे आप कर सकते हो, मतलब जो भी टर्म्स है सबका करो, उसके बाद से उनको ऐड करो। अब देखो अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पक्का आपसे पूछे जाते हैं 100%, ये गारंटीड है कि 100% आपसे पूछा जाता है। कह रहा है कि x एंड y आर रेशनल नंबर एंड दिस इक्वल टू दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इसमें कुछ नहीं करना होता, देखो बाबू कुछ नहीं, पहले तो आप इनका रेशनलाइजेशन कर सकते हैं ना, सिंपली फर्स्टली यू हैव टू ओनली रेशनलाइज दिस नंबर, ओके, आफ्टर रेशनलाइजिंग यू हैव टू नीड टू कंपेयर दिस, ओके आप अगर रेशनलाइज पहले कर पा रहे हो कर लो रेशनलाइजेशन, उसके बाद से ये जो है ना इसका कंपेयर ये कर लो, सपोज करो इसका रेशनलाइजेशन लुक एट हियर, जैसे यहाँ देखिए इसका रेशनलाइजेशन ये आया, लुक एट हियर, इसका रेशनलाइजेशन आफ्टर रेशनलाइजिंग वी गेट दिस, देन हमें देखो किसकी वैल्यू बतानी है, लुक एट हियर, हमें x और y की वैल्यू बतानी है, जब x और y की वैल्यू बतानी है यानी इससे आप कंपेयर कर दोगे, ये देखो x में किसी भी रूट टाइप का नंबर का मल्टीप्लिकेशन नहीं है ना, यानी वो नंबर यहाँ खोजो जिसमें किसी भी रूट टाइप के नंबर का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, दैट्स व्हाई आफ्टर कंपेयरिंग हियर वी गेट x इक्वल टू व्हाट माइनस 37/35 and y equal to what, देखो root 11 both are cancelled, that's why y equal to the minus 13/35, look at here, देखो same thing written, look at here, yes after comparing here you get what, x की वैल्यू क्या आई माइनस 37/35 एंड y इक्वल टू, एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ये गारंटीड है कि क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखो आप सिमिलरली इसको भी कर सकते हो, सिमिलरली इन सिमिलर वे इसको बस रेशनलाइज करो और उसके बाद से क्या p और q की वैल्यू को ऐसे मतलब आपको फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे, LHS RHS को इक्वल करके इसको कंपेयर कर दो, देन यू गेट योर वैल्यू। हाँ देखो अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कह रहा अगर x की वैल्यू ये है, लुक एट हियर, तो आपको इसकी वैल्यू पूछी जा रही, कर सकते हो। अब वेरी सिंपल, इसमें देखो क्या कह रहा है, अगर x की वैल्यू आपको गिवन है व्हाट, अगर x की वैल्यू है 3 + 2√2 तो आपको x² प्लस इसकी वैल्यू पूछी गई है x² प्लस 1/x²। देखो हम आपको हिंट दे रहे हैं कैसे कर सकते हैं, लुक एट हियर, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। जैसे ये देखो सपोज करें यदि आपसे ये कहा गया अगर x की वैल्यू क्या है 2 प्लस सपोज करो हम मान लो 3√2 दे दें, हम कहें आप बताओ x² प्लस 1/x² की वैल्यू, तो बहुत कुछ नहीं करना, इन प्लेस ऑफ ये x, इन प्लेस ऑफ ये इफ ऐसे गिवन है, इफ ये देन इतना इक्वल्स व्हाट, ये आपसे पूछा जाएगा, ओके। तो इसमें देखो कुछ नहीं करोगे, इन प्लेस ऑफ x यू कैन राइट 2 + 3√2, ओके, इसका स्क्वायर प्लस 1/2 + 3√2, ठीक है, ठीक बस इसका स्क्वायर, ओके, एंड दिस कैन आल्सो बी रिटन एज, देख इसका बस स्क्वायर आप कर लो, इसका तो स्क्वायर कर सकते हैं ना, अरे a + b का होल स्क्वायर, अब फिर इसका स्क्वायर करो, ओके। अब जो ये आया ना फिर आपको इसको क्या कर रेशनलाइज कर देना है, अब जो फाइनल आया ना मतलब ये देखो ये प्लस हो जाएगा क्या a² प्लस 3 3 या 9 2 या 18 और प्लस क्या ये 12√2, ठीक है। अब ये सॉल्व कर लो, ये प्लस में क्या आएगा ये 22 + 12√2, फिर आपको इसका फिर रेशनलाइजेशन करना, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको थोड़ा सा फार्मूला से ब्रेक कर दो, जो आया ना उस सबको ऐड कर दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, यानी इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आप पूछे जाते हैं, ओके। आप ये टॉपिक कर सकते हो, यस देखो अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आप इसको कर सकते हो। चलो हमने बता दी, देखो जैसे हमने बताया ना सेम वैसे ही लुक एट दिस, ठीक है, आप कर सकते हो। चलो और देखो इसमें वेट, यस ठीक है, तो देखो ये एग्जांपल 20 x इक्वल टू दिस, देन फाइंड द वैल्यू, सेम बस x की वैल्यू आप वहां रख लो, फिर इसका क्या करो रेशनलाइजेशन आपको कर देना, ओके। चलो तो ये यस
इफ p इक्वल टू दिस एंड q इक्वल टू देन फाइंड द वैल्यू, सो सिंपल। बस p की वैल्यू आप यहाँ रखो इन प्लेस ऑफ p की वैल्यू यहाँ क्या रखोगे ये, और q की वैल्यू ये रखो, और दोनों का स्क्वायर कर, उसके बाद से सॉल्व करो, रैशनलाइजेशन क्या मल्टीप्लिकेशन वगैरह आपको करना पड़ेगा, देन यू गेट योर आंसर। चल ठीक है। यस रियल नंबर देखो हम अभी आपने बताया ना, अगर रेशनल और इरेशनल दोनों को मिला दो तो क्या मिल जाएगा, रेशनल और इरेशनल में मिलाने पे हमको रियल नंबर, यही हमने बिल्कुल हमने स्टार्टिंग क्लास में आपसे ये सारे करा दिए थे, रेशनल इरेशनल ये सारे समझ में आ रहा ना, ये सारे हमने आपको बता दिया। चलो तो फिर यहाँ वेट ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर योर एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर समझो दो रियल नंबर है उनका सम हमेशा रियल नंबर होता है, ये सबको पता है। दो रियल नंबर उनका डिफरेंस हमेशा रियल नंबर होगा, ये कहने का मतलब। दो रियल नंबर है उनका प्रोडक्ट हमेशा रियल नंबर, और दो रियल नंबर है लेकिन जो ये अगर a अपन b फॉर्मेट का लिख रहे हैं तो b जीरो नहीं होनी चाहिए, अगर इस फॉर्मेट का तो a अपन b भी रियल नंबर आपका होगा। ये सारे आपको प्रॉपर्टीज गिवन है, आप इसको देख सकते हो। ओके चलो तो आप इसको देख सकते हो। अब देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन ए लाइन, ठीक है, हमने नंबर लाइन पे इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमने ये सारे आपको बता दिया था, ठीक है। हाँ ये देखो आप वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है, लुक एट हियर। इसके बाद से आपका ये शायद एक बस लास्ट जब हम बता रहे हैं, ठीक, इसके बाद चैप्टर आपका ये इस बार सारे कर सकते हो। ओके यस ठीक है, ये देखो इसका एक्सरसाइज आपके खत्म, ठीक है। देखो तो एक हम आपको बता रहे हैं, जैसे सपोज करो कि रियल नंबर को आपको यदि आपको कह दिया जाए कि रिप्रेजेंट, लुक एट हियर, रिप्रेजेंट लुक एट हियर √2 ऑन व्हाट रियल लाइन, रियल लाइन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको कैसे रियल लाइन, जैसे आप देखो नंबर लाइन पर ऐसे आपसे कहते 5 को रिप्रेजेंट करो, मान लो 0 होता, 1 होता, 2 होता, 3 होता और क्या 4 होता और 5, मान लो आपने 5 कह दिया कि हाँ, लेकिन √2 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट, लुक एट हियर। इसके लिए आपको पहले ये करना है, यहाँ नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया, यहाँ क्या होता है 0 सपोज करो, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3 सपोज करो। अब देखो क्या हमको, देखो इसमें हमको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ता है। अगर सपोज करो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कैन बी रिटन एज 1 + 1, ओके। देखो इसका रूट ले लो, इसका रूट ले लो, और 1 को 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, मतलब ये जब पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा है तो वहाँ क्या राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी बात करते हैं तो उसमें क्या एक बेस होता है, एक हाइपोटेन्यूस और एक परपेंडिकुलर, ओके। तो ये अगर इसको लिखना है ना, सपोज कर ये मान जो सबसे लार्जेस्ट होता है वो क्या हाइपोटेन्यूस हो जाता है, तो इनमें जो स्मॉलेस्ट और क्या मतलब इनमें आप किसी को इंटरचेंज कर सकते हो, परपेंडिकुलर बेस आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। तो इसमें देखो क्या कह रहा है, मान सपोज करो परपेंडिकुलर 1 है और क्या बेस सपोज करो 1 है, तो यहाँ से देखो लुक एट, आप सपोज करो मान लो यहाँ लुक एट हियर, आपको √2 क्या दिखाना है नंबर लाइन पे, ठीक है। आप देखो पहले बेस मान लो हमने 1 था, अरे मान लो 1 ही है ना, हमने सपोज करो बेस यहाँ से आप देखो वेट यस ठीक है, हमने मान लो तो बेस यहाँ से यहाँ का हमने 1 गया, ठीक है, ये देखिए 1 है। अब देखो आपको देखो 1 मतलब ये परपेंडिकुलर भी है ना, तो यहाँ से आप कुछ ना बाबू 1 जाओ, देखो यहाँ से आपने सपोज करो 1, ठीक है, सपोज करो 1 मान लो यहाँ तक गया, ओके। आप क्या करो ना, यहाँ से इसको लुक एट हियर, यस आप क्या करो वेट यस ठीक है यस, आप यहाँ से क्या करो ना, यहाँ से इसको ज्वाइन करा दो, ओके। ये देखो ये कितना था 1, तो ये भी 1, ओके, लेकिन ये कितना हो गया, ये देखो एक्चुअली राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना, जब ये 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर या सेंटीमीटर है और ये 1 मीटर या सेंटीमीटर, तो ये आपका कितना हो गया √2, ध्यान देना ये आपका √2 हो गया। लेकिन आपको ये देखो ये तो √2 हुआ ना, लेकिन हमें √2 चाहिए नंबर लाइन पे। जब आपको नंबर लाइन पे चाहिए तो आप यहाँ क्या करो, कंपास रखो, ओके, कंपास यहाँ रखो, यहाँ पे लुक एट हियर, यहाँ पे आप कंपास रखोगे, यस वेट यस, आप यहाँ पे वेट यस ये आप यहाँ पे कंपास रखो, ठीक है। आपको √2 चाहिए ना, तो ये डिस्टेंस आप ले लो, ये वाला लुक एट ये यहाँ तक का आपने डिस्टेंस ले लो ये। अब यहाँ से कंपास को रख करके ऐसे कुछ कट करो, ऐसे लुक एट यस, ऐसे ऐसे कुछ कट करो, ऐसे देखो ऐसे आएगा ना कंपास, ऐसे ध्यान देना वेट यस, ऐसे कुछ कंपास आएगा, ध्यान देना। तो ये जो आपका कंपास ये इधर जाएगा, लेकिन कंपास हमें ये आ रहा है ना, ये तो ये देखो रियल लाइन पे कहाँ टच किया, यानी ये पॉइंट, यही पॉइंट है ना, लुक एट हियर दिस पॉइंट इज योर √2। सब अब देखो √2 की वैल्यू भी कितनी होती है 1.414, यही होता है, इसके बाद भी होता है, लेकिन ध्यान ये 1 है ये 2 है, तो पक्का इसके बीच ही कहीं आएगा, देखो बिल्कुल बीच में आएगा, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे ही आप
ऐसे ही आप किसको रूट 10 को भी दिखा सकते हैं। लुक एट हियर, अगर आपसे कहा जाए लुक एट हियर कि रूट 10 को लुक एट हियर रूट 10 को नंबर लाइन पे दिखाना है, कहाँ दिखाना है बाबू, नंबर लाइन पे। प्लॉट ऐसे हम आपसे कह दे प्लॉट रूट 10 ऑन व्हाट नंबर लाइन, तो इसमें देखो कुछ नहीं, 10 को आप लिख सकते हैं क्या 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, पक्का। अगर ये हम देखो रूट 10 लिखे तो ये हो जाएगा क्या रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज लुक एट हियर, देखो इसको हम हटा रहे हैं, यस इसको थोड़ा सा हटा रहे हैं, ये इसको हम लिख सकते हैं, देखो जैसे ये है तो सेम आप ये कर सकते हैं, वेट ऐसे ये देखो, हाँ ये देखो वेट, ठीक है, हाँ ये देखो जैसे यस रूट 10 को क्या आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट में। तो ये देखो हमने आपसे क्या कहा, यहाँ पे नंबर लाइन होगा, आप देखो क्या 3 डिस्टेंस है ना, यहाँ आप 0 1 2 3 4 अप टू S1। अब देखो यहाँ पे आपको 3 जाना है ना, तो सपोज कि आप 0 से 3 पे जाओ, 0 से 3 पक्का यहाँ तक ये ओके। हमको कितना डिस्टेंस जाना 1 है ना, तो बाबू आप जाओ 1 गया ना। अब देखो ये 1 हुआ, ये 3 हुआ, यहाँ से यहाँ 3 ओके, यहाँ से यहाँ। अब इसको आप क्या करोगे लुक एट हियर, इसको आप करोगे क्या, यहाँ से इसको ज्वाइन करा दिया, कराया ना। अब देखो हमने क्या आपसे कहा था, आप मतलब ये कंपास को रखो यहाँ, इससे ये डिस्टेंस ये आपका हो गया रूट 3। अरे देखो आप पाइथागोरस में क्या पढ़ते हो, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू क्या हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये हुआ यानी ये देखो ये वेट ये आपका हो जाएगा रूट 10 ओके। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 यानी 10 ओके। अब देखो आप यहाँ रखो, इसके बाद यहाँ पे कंपास रखो ओके, यहाँ से कंपास रखा, ये डिस्टेंस मेजर किया, अब इसको यहाँ से ऐसे कट करेगा, ऐसे ही होगा ना। ये देखो ये जो पॉइंट है ना, रियल लाइन को कहाँ पे कट किया, रियल लाइन को अगर जिस पॉइंट पे कट किया ना, तो ये आपका हो गया, जिस पॉइंट पर कट किया ये आपका पॉइंट हो गया रूट 10। तो ये आपका रूट 10 का रिप्रेजेंटेशन है, मतलब इर्रेशनल नंबर को आप रियल लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ से आपने ये समझ। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ये 100% है ना, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपने देखो हमने इरेशनल नंबर को भी रियल लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे हमने बता दिया, और रेशनल नंबर को तो हमने बताया, आप इसको जानते ही हो, ठीक है। सो फाइनली दिस चैप्टर आई कंप्लीटेड हियर ओके। तो ये चैप्टर बिल्कुल खत्म हो गया, आप इसको अच्छे से जितना हमने टॉपिक बताया अगर आप इसको अच्छे से देख सकते ना, देन यू कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स फ्रॉम योर एक्सरसाइज एज वेल एज योर एग्जाम्पल्स ओके। तो ये सारे चैप्टर्स रेशनल एंड इरेशनल नंबर आई जस्ट हियर completed, so you can try and solve it a lot of problem from this exercise okay। तो ये देखो वेट यस देखो हमने सारे क्वेश्चन आपसे लगभग मतलब हमने विजुअलाइजेशन से भी डिस्कस कर दिया, इसको आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। चलो तो ये लगभग हमने क्वेश्चंस लगभग मैक्सिमम हमने आपको सॉल्व करा दिया, आप इजीली बेसिस को देख सकते हैं। चलो वेट